Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 6 of the 6th chapter electromagnetic induction of class 12. In this part, the topics are related to eddy currents, which are eddy current itself, its experimental demonstration, undesirable effects of eddy currents, minimization of losses due to eddy currents, and its advantages, applications or usage. So these are the topics related to eddy currents, which are usually asked in different boards examinations, including CBSE and the state boards all over in India. So it is a very important, eddy current is a very important topic. First of all, I am starting from eddy currents. eddy currents, भंवर धाराएं, हिंदी में इसको भंवर धाराएं कहा जाता है. सबसे पहले साइंटिस्ट फोको ने ऑब्जर्व किया कि जब किसी एक मेटलिक ब्लॉक को और किसी मेटलिक प्लेट को, धातु के प्लेट को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब बदलते हुए परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उसको मोशन कराया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, तो उस धातु के प्लेट में, उस मेटलिक प्लेट में, मेटलिक ब्लॉक में सर्कुलेटिंग इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है. चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं धातु के उस प्लेट में, जिसको परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है जिस चालक प्लेट को, तो उसमें चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहा जाता है. और इनका रूप पानी में जो भंवर उत्पन्न होता है रिवर्स वगैरह में, रिवर्स में बरसात के दिनों में जब वाटर का स्ट्रीम काफ़ी अधिक होता है, तेज होता है, तो उसमें कई जगह पर भंवर दिखाई देता है, चक्करदार सर्कुलेटिंग करंट्स दिखाई देता है वाटर के सरफेस पर ही, जिसको एडी करंट्स कहा जाता है. तो इसका नेचर, चूँकि इसका जो शेप है वह ईडीज जैसा है, जो वाटर में फॉर्म होता है ईडीज, पानी में जो भंवर उत्पन्न होता है उसके समान है. Hence, these circulating induced currents, which are produced in a metallic block or a metal plate, when it is kept inside a changing magnetic field or moved in or out in a uniform magnetic field. So these induced circulating current produced in the metal plate due to change in magnetic flux linked with it are called eddy currents. Write down its definition. What are eddy currents? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है. व्हाट आर eddy currents, केवल व्हाट आर eddy currents 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, और ये सभी टॉपिक मिलाकर के लॉन्ग में भी पूछ सकता है. इसका क्या अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है ट्रांसफार्मर में, डायनमोज में, चोक कॉइल में, उसे प्लस इसका क्या एडवांटेजेज है, क्या यूजेज है, ये सब मिला करके कंबाइन करके 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. एंड व्हाट आर एडी करंट्स या व्हाट आर द यूजेज ऑफ एडी करंट्स, तो ये 2 और 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है. सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है. तो नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एडी करंट्स. इफ ए मेटलिक ब्लॉक और मेटल प्लेट, metallic block or a metal plate is placed inside a variable or changing magnetic field, or moved, if the metal block is moved in or out, अंदर और बाहर की ओर, in or out, inside in a uniform magnetic field,
in a uniform magnetic field, circulating चक्रदार, circulating induced currents, circulating induced currents are set up in the metallic block or metal plate, which was observed by eddy currents were observed by scientist Foucault. So after his name, these currents are called eddy currents or Foucault currents, and their shape are similar to the eddies formed over the water surface in a river. In the metric block, which are called eddy currents or Foucault currents. Foucault currents after the name of the scientist Foucault. Foucault currents. I am repeating again. Write down this definition. What are eddy currents? If a metric block or a metal plate is placed inside a changing magnetic field or moved in or out in a inside a uniform magnetic field, circulating induced currents are set up in the metallic block, which are called eddy currents or Foucault currents after the name of its discoverer Foucault. Foucault द्वारा इसकी खोज की गई, इसलिए इसे eddy currents को, भंवर धाराओं को Foucault currents भी, eddy currents are called Foucault currents. Now what is the cause of Foucault current? तो कॉज है इंड्यूस करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल. किसी कॉइल से, किसी क्लोज लूप से लिंक्ड संबद्ध जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ भी ईडी करंट भी इंड्यूस करंट है, इसका भी प्रोड्यूस होने का कारण वही है. इसका कॉज क्या है? कॉज मतलब क्यों प्रोड्यूस होता है? कॉज ऑफ ईडी करंट्स, तो लिखिए ईडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड due to change in magnetic flux linked with a metallic block placed in a changing magnetic field or moved in a uniform magnetic field. Eddy currents are produced due to change in magnetic flux. क्योंकि किसी मेटलिक ब्लॉक को अगर आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द ब्लॉक, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द ब्लॉक चेंजेज, तो चेंज होना ही है. या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मेटल ब्लॉक को मूव कराएंगे तो उससे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में होगा वो चेंज होगा. मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी होगी. अगर मेटल प्लेट मैग्नेटिक फ्लक्स से बाहर निकलेगा, मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी होगी. और अगर वह मेटल प्लेट और मेटल प्लेट और मेटलिक ब्लॉक अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की ओर इंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उससे जो एसोसिएटेड होगा ब्लॉक से बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा. तो इसके कारण इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है उस मेटलिक ब्लॉक में और मेटल प्लेट में, जो कि मोशन में भी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में. मोशन में नहीं भी है लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि अपोजिंग नेचर का होगा. लेंज रूल के अनुसार इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन, ईडी करंट्स का भी डायरेक्शन अपोजिंग नेचर का होगा. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा, इंक्रीज अगर होगा मैट्रिक प्लेट में मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो उसको डिक्रीज करने का प्रयास, उसको इंक्रीज करने से रोकने का प्रयास करेगा. और जब डिक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द मेटलिक ब्लॉक और मेटल प्लेट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो डिक्रीज जब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसका डिक्रीज कर मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज होने का अपोज करेगा. ईडी करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा. तो ये अपोजिंग नेचर का होगा अकॉर्डिंग टू द लेंज रूल, बिकॉज ईडी करंट्स आर इंड्यूस करंट. एंड अकॉर्डिंग टू लेंज रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन ए कॉइल
अपोजिट द कॉज दैट कॉज ड्यू टू विच इट इज सेल्फ प्रोड्यूस्ड। तो किसी बंद लूप में या बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस ढंग से होती है कि वह उसी कारण का अपोज करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है उस क्लोज लूप में। तो कारण क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का? कारण वही है मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना या घटना। तो एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a metallic plate inside the changing magnetic field। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा जब उसका मूव कराएंगे उसे, तो वहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेगा मेटलिक प्लेट से या मेटलिक ब्लॉक से, उसमें चेंज आएगा। प्लेस्ड इनसाइड ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मोशन भी कराएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक इनसाइड ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। So these are the this is the cause to why eddy currents are produced in a metal block, metallic block or a metal plate. Now exponential determination of eddy currents. Now experimental demonstration of eddy currents. eddy currents के प्रेजेंस को एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेट करना है। उसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जंपिंग मेटलिक डिस्क। जब किसी मेटलिक डिस्क को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अपर फेस पर रखा जाता है तथा इलेक्ट्रोमैग्नेट से होकर करंट को स्विच ऑन किया जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से होकर मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज होता है, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। और इसके कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पर विद्युत चुंबक के ऊपरी सिरे पर अपर फेस पर जो लाइट मेटलिक डिस्क रखा हुआ है, जैसे एल्युमिनियम का डिस्क रखा जा सकता है हल्का, तो उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जिसके कारण उस मेटलिक डिस्क में ईडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाता है। और ईडी करंट्स का जो ईडी करंट चूँकि इंड्यूस करंट है, प्रेरित धाराएं हैं, तो उसका डायरेक्शन इस ढंग से होगा जो कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज करने का अपोज कर सके। इसलिए मेटलिक डिस्क के लोअर फेस नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट का अपर फेस भी नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है। और हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल्स के बीच में रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है और उस रिपल्सन फोर्स के कारण जो मेटलिक डिस्क है वह ऊपर कुछ हाइट तक जंप कर जाता है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट और इसे फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ यू कैन राइट डाउन इट। इस प्रोसीड्योर, if a light metallic disc, say aluminum disc, is placed over an electromagnet, it jumps up through a certain height from the electromagnet due to production of eddy currents in the metallic disc, eddy currents in the metallic disc when the electromagnet is switched on। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट से होकर करंट स्विच ऑन होता है, करंट स्विच ऑन होगा, तो करंट जब फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा और उसके कारण जो उसके अपर फेस पर जो ये मेटलिक डिस्क रखा हुआ है, एल्युमिनियम का लाइट रखा जा सकता है, एल्युमिनियम का हल्की चकती, हल्की डिस्क, तो उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है और उसके कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है उस मेटलिक डिस्क में। और इंड्यूस्ड करंट का पोलरिटी डायरेक्शन इस ढंग से होता है जिससे कि वह मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज करने का, जो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है, उसका अपोज कर सके। और इसके कारण नॉर्थ पोलरिटी बन जाती है उसके लोअर फेस पर, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी अपर फेस पर नॉर्थ पोलरिटी होती है।
और नॉर्थ नॉर्थ पोल्स के बीच में रिपल्सन होता है, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अपर फेस पर, ऊपरी सतह पर रखा हुआ मेटलिक डिस्क ऊपर जंप कर जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, यू कैन राइट डाउन इट। इफ ए लाइट मेटलिक डिस्क, say aluminum disc, is placed over an electromagnet, it jumps up through a certain height from the electromagnet due to production of eddy currents in the metallic disc when the electromagnet is switched on, and then due to change in magnetic flux linked with the electromagnet and also that of the disc. अब इस एक्सपेरिमेंट को फिगर से भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, फिगर 1 में। और इसके मेटलिक डिस्क के जंपिंग का, ये ऊपर जंप कर जाता है नॉर्थ पोल के अपर फेस से, उसको इसमें फिगर 1 में एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। जब इस नॉर्थ पोल को जब इस मेटलिक डिस्क को इस इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कोर है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, आयरन कोर, और इस पर कॉपर वायर को उंड किया हुआ है इंसुलेटेड कर, और अगर इसे एक एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो इसमें करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करने से इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो डिफरेंट टर्न्स है, जो आयरन कोर पर उंडेड है, लिपटे हुए हैं, उनसे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, उनसे संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, उसमें इंक्रीज होगा, और इसके कारण इसके अपर फेस पर जो पहले रखा हुआ था मेटलिक डिस्क, उससे लिंक्ड भी मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज होगा, जिसके कारण मेटलिक डिस्क में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, और इसका डायरेक्शन इस ढंग से होगा जिससे कि इस मेटलिक डिस्क में भी इंड्यूस करंट होगा, और इसका डायरेक्शन इस ढंग से होगा जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और मेटलिक डिस्क में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें जो इंक्रीज हो रहा है उसका अपोज कर सके। तो उसके कारण इसके लोअर फेस पर, मेटलिक डिस्क के लोअर फेस पर नॉर्थ पोलरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसमें भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा मेटलिक डिस्क में भी। तो इसके नॉर्थ पोल, लोअर फेस इसका नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसा होगा। ईडी करंट्स क्या है? इंड्यूस करंट्स ही है। तो ईडी करंट का डायरेक्शन इंड्यूस, चूँकि ईडी करंट्स इंड्यूस करंट्स है, देयरफॉर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मेटलिक डिस्क में इस ढंग से होगा जिससे कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है उसका अपोज कर सके। देयरफॉर इसमें भी मेटलिक डिस्क में भी ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है मेटलिक डिस्क में, और उसका डायरेक्शन इस ढंग से होगा कि मेटलिक डिस्क का जो लोअर फेस है वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का अपर फेस भी नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, जिससे कि इसमें जो करंट का इंक्रीज हो रहा है, और जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में भी इंक्रीज हो रहा है, उसका अपोज कर सके। और हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल के बीच में, दो सिमिलर पोल्स के बीच में रिपल्सन होता है। तो यहाँ नॉर्थ पोल अपर फेस इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, और मेटलिक डिस्क का भी लोअर फेस नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, जिससे दोनों फेसेस के बीच में रिपल्सन होता है और मेटलिक डिस्क ऊपर जंप कर जाता है कुछ हाइट तक। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ ईडी currents, and which is jumping metallic disc. Now we can demonstrate another experiment which is the damping of a metallic plate or a metallic pendulum when it is oscillating between two poles, magnetic poles of an electromagnet. अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अगर कोई मेटलिक प्लेट है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो उसके कारण उसका मोशन, उसमें भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और उसका डायरेक्शन इस ढंग से होगा इंड्यूस करंट का, जो कि ईडी करंट्स ही हैं, इंड्यूस करंट्स, जिससे कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
जब इंटर करेगा तो इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, उसके कारण उस मेटलिक प्लेट में या मेटलिक पेंडुलम में, मान लिया कॉपर पेंडुलम है या कॉपर प्लेट है, तो इंटर किया जब मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज होगा, उसके कारण उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा जो कि ईडी करंट्स है, और जिसका डायरेक्शन इस ढंग से होगा कि उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है उस पेंडुलम से होकर, उस मेटलिक प्लेट और मेटलिक पेंडुलम से होकर, तो उसका अपोज करेगा। इसलिए जब इंटर करेगा मैग्नेटिक प्लेट तो उसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो कि ईडी करंट सी है। और जब वह मेटलिक प्लेट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो उसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, ईडी करंट्स का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जिससे कि बाहर जब मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा मैग्नेटिक प्लेट, ऑसिलेटिंग करता हुआ मैग्नेटिक प्लेट, तो उसमें उससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसमें डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस उसमें होगा मैग्नेटिक प्लेट में, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक प्लेट में, जो कि उसमें उससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें डिक्रीज करने का अपोज करेगा, और अब उस मैग्नेटिक प्लेट में इंड्यूस करंट और ईडी करंट जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, जिससे कि वह जो बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बोथ मैग्नेटिक पोल से बाहर निकल रहा है, तो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में, उस प्लेट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आएगी, तो उसके कारण इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा उसमें मैग्नेटिक प्लेट में, ताकि वह मैग्नेटिक फ्लक्स में जो डिक्रीज हो रहा है उसका अपोज कर सके। तो यहाँ भी ईडी करंट्स एडी करंट्स प्रोड्यूस होगा ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक प्लेट में, जो कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो इसके कारण जो ईडी करंट प्रोड्यूस होगा उसके ऑसिलेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड में मेटल प्लेट के, तो वह ईडी करंट उसके मोशन में को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और उसका मोशन जो है रिटार्ड होगा मेटल प्लेट का, और कुछ समय के बाद मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करने के बाद वह हाल्ट में, मतलब वो हाल्ट में आ सकता है, रुक जा सकता है, या उसका मोशन डैम्प्ड हो सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी हम फिगर से डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो नाउ राइट डाउन सेकेंड एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट इज स्टॉपेज और हाल्टेज of a metallic plate or a copper pendulum or of an oscillating metallic plate or a copper pendulum between two magnetic poles of an electromagnet. Due to motion of the metallic plate between two pole pieces, north pole and south pole of an electromagnet, there is change in magnetic flux linked with the metallic plate, and therefore eddy currents are induced or produced in the metallic plate, which opposes the motion of the metallic plate or retard the motion of the metallic plate between the magnetic field of electromagnet. Thus, motion of the pendulum or copper pendulum or metallic plate or a metallic plate is damped
and ultimately after some time the metal plate, oscillating metal plate can be stopped. So this is another experimental demonstration of eddy currents due to motion of the metallic plate inside the magnetic field of electromagnet, between two pole pieces of magnetic field of an electromagnet induced current or eddy currents. Eddy currents are the induced current. Induced currents or eddy currents are produced in the oscillating metallic pendulum which opposes the motion of the pendulum inside the magnetic field. Direction of induced current which opposes its motion inside the magnetic field of the electromagnet, inside the magnetic field, and ultimately the metallic plate comes to rest. And this all happened due to the production of eddy currents or induced current in the metallic plate due to its oscillatory motion inside the magnetic field of the electromagnet. फिगर 2 में सेकेंड एक्सपेरिमेंट को डिमोन्स्ट्रेट किया गया है। इसमें एक सपोर्ट से एक कॉपर प्लेट को सिंपल पेंडुलम के जैसा ओसिलेट कराया जा रहा है और उसे दो मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच ओसिलेट कराया जा रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का दो मैग्नेटिक पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पर राइट साइड में मेरे जब ये कॉपर प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है नॉर्थ पोल से होकर, तो इस कॉपर प्लेट से लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वह इंक्रीज करेगा और उसके कारण इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज का अपोज करेगा। तो इसलिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा जो कि नॉर्थ पोल के अंदर कॉपर प्लेट को, ओसिलेटिंग कॉपर प्लेट को इंटर करने का अपोज करेगा। इसलिए इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये जब कॉपर प्लेट पेंडुलम जैसा ओसिलेट करते हुए अब साउथ पोल से जब बाहर निकल रहा है, तो उस सिचुएशन में साउथ पोल से बाहर निकलने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या और मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे लिंक्ड होगा
इस कॉपर प्लेट से, उसमें कमी आएगी, डिक्रीज होगा, और उसके कारण इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा इस मेटल प्लेट के अंदर, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा जिससे कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो डिक्रीज हो रहा है उसको अपोज करे। इसलिए इसमें करंट का जो डायरेक्शन होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। उसमें एंटी क्लॉकवाइज जब इंटर कर रहा है तब इसमें क्लॉकवाइज, जिससे कि इसको मैग्नेटिक फ्लक्स में जो बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने का अपोज करे, मतलब कॉपर प्लेट के साउथ पोल से होकर बाहर निकलने का अपोज करे, या कॉपर प्लेट से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, इससे संबद्ध जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉपर प्लेट से, उसमें जो कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने के कारण, तो उसका अपोज कर सके। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉपर प्लेट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। And when the metal plate was entering at the through the north pole, near the north pole of the strong electromagnet, then magnetic flux linked with the metal plate increases, and therefore direction of induced current is such that is in anti-clockwise direction, so that to oppose the increase in magnetic flux linked with it. And it will also oppose the entrance of the copper plate inside the magnetic field. तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट jumping of a metal disc placed over an electromagnet, and second one is in figure 2, oscillatory motion of a copper plate similar to simple pendulum between two magnetic poles, north pole N represented by N and south pole represented by S, of an electromagnet or of a strong electromagnet. तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ईडी करंट्स के प्रेजेंस को मेटल प्लेट्स के, मेटल दोनों केस में, फर्स्ट केस में जंपिंग मेटल डिस्क में, और इसमें मेटल ओसिलेटिंग मेटल प्लेट में। Now, undesirable effects of ED currents. ED current इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अनुपयोगी भी हैं, अनडिजायरेबल हैं। इनके कारण इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे ट्रांसफार्मर है, डायनमो है, चोक कॉइल है, तो इन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, विद्युतीय उपकरणों में काफ़ी लार्ज अमाउंट में ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर, डायनमो, चोक कॉइल्स के कोर्स जो होते हैं, के कोर जिन पर कि कॉपर वायर्स लिपटे होते हैं, तो कंडक्टर का होता है, सॉफ्ट आयरन का होता है, जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। सॉफ्ट आयरन का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, तो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ ईडी करंट उससे फ्लो करेगा, ईडी करंट उसमें प्रोड्यूस होगा उनके कोर से होकर के, ट्रांसफार्मर, डायनमो, चोक कॉइल के कोर से होकर के लार्ज, चूँकि उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, उनके रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, तो उनसे होकर के काफ़ी लार्ज अमाउंट में ईडी करंट प्रोड्यूस होगा, उसमें फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा उनके कोर्स में, ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, डायनमोज और चोक कॉइल्स के। और इसके कारण, ईडी करंट्स के कारण दो तीन बातों का उसमें, दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, उसमें नुकसान हो सकता है दो तीन चीज़ों का। जैसे कि ईडी करंट्स के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल्स हीटिंग इफेक्ट के कारण हीट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। जब कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होता है। तो ईडी करंट चूँकि काफ़ी लार्ज अमाउंट में इंड्यूस होती हैं ट्रांसफार्मर के कोर में, या डायनमो के कोर में, या चोक कॉइल में, या चोक में।
चोक कॉइल तो एसी करंट के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करता है, स्ट्रेंथ को। चोक जो होता है मरकरी में चोक, तो पहला नुकसान हो सकता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ईडी करंट के कारण, कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जूल सीटिंग के कारण हीट के रूप में, हीट के फॉर्म में वेस्टेज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज हीट एनर्जी के रूप में काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा। सेकेंड हो सकता है कि ईडी करंट्स के कारण जो इंसुलेशंस हैं, इंसुलेशंस उनके हैं कोर के, वह जल सकता है, बर्न हो सकता है। एंड नंबर 3, ईडी करंट्स के कारण डैम्पिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो दीज आर द अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ ईडी करंट्स। राइट डाउन ईडी currents are undesirable in the electrical appliances like transformers, dynamos or generators, dynamos or generators, और इन चोक, मरकरी ट्यूब में चोक कॉइल होता है, और इन चोक कॉइल्स ऑफ मरकरी ट्यूब, उसमें भी आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उस पर कॉपर तार इंसुलेटेड करके लिपटा होता है। तो ईडी करंट्स आर अनडिजायरेबल इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक ट्रांसफार्मर्स, डायनमोज और जनरेटर्स, or in choke coils and in choke coils etc. in the following regions. Number 1, ED currents produce large amount of heat in the cores of transformers, generators और डायनमोज etc. चोक्स और हीट एनर्जी कहाँ से? हीट एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। resulted into wastage of a large amount of electrical energy into heat.
leads to resulted to the wastage of a large amount of electrical energy into heat. नंबर 2, जो इंसुलेशन होता है कॉपर वायर का, चूँकि इंसुलेटेड कॉपर वायर को इंसुलेटेड करके तब जो है वुंड किया जाता है सॉफ्ट आयरन कोर पर, ट्रांसफार्मर या चोक कॉयल में भी या डायनमो में भी, के कोर्स में भी आर्मेचर कॉयल होता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर लिपटा होता है। तो काफ़ी हीट जब जनरेट होगा तो उसका इंसुलेशन भी जल सकता है, नष्ट हो सकता है, जल सकता है, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। नीचे ED currents may damage the insulations of the wounded wire over the core of transformer, electrical appliances, transformer, dynamo, etc. over the cores of the electrical appliances like transformer, cores of transformer, generators, etc. और थर्ड जो अनडिजायरेबल इफेक्ट ED करंट्स के कारण हो सकता है वह है डैम्पिंग। ED करंट्स प्रोड्यूस्ड डैम्पिंग। जैसा कि हमने मेटल प्लेट का, कॉपर प्लेट का मैग्नेटिक पोल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में जब ऑसिलेट कराया गया तो उसमें डैम्पिंग होता है। तो ED करंट्स, थर्ड अनडिजायरेबल इफेक्ट होगा ED करंट्स में कॉज डैम्पिंग इफेक्ट। मोशन में डैम्पिंग ला सकता है। कोई मेटल प्लेट अगर मोशन में है, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली देखा भी, डिमॉन्स्ट्रेशन किया, डैम्पिंग इफेक्ट। तो दीज आर द ED currents are undesirable due to following reasons. These are the 3 reasons why ED currents are undesirable. अब ED currents को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसके कारण जो लॉसेस है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। कम्प्लीटली तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन मिनिमाइज़ किया जा सकता है। Now minimization of losses due to ED currents. The course of electrical appliances like transformer, dynamos or generators, choke, etc. are made of soft iron over which insulated copper wire is wounded.
over each core of the electrical appliances. The resistance of the core is very small, therefore very large induced currents or ED currents are produced in the core, and this is the wastage. This results to the production of heat in the core due to ED currents, which is wastage of electrical energy in form of heat. To minimize ED currents in these electrical appliances like transformer, dynamos and chokes, their cores should be constructed to be laminated. That is, laminated core can be used to reduce the ED currents, strength of ED, magnitude of ED currents through the cores of the electrical appliances. Because laminated cores, the resistance of laminated cores, the resistance of a laminated core is much larger than a single piece of iron, that is iron core. विद्युतीय उपकरणों जैसे कि ट्रांसफार्मर, डायनेमो, चोक में नरम लोहे का कोर होता है जिसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर, विसंवाहित तांबे का तार लिपटा होता है। चूँकि नरम लोहे का प्रतिरोध रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, इसलिए लार्ज अमाउंट में काफ़ी अधिक मैग्नीट्यूड का इंड्यूस करंट, ED करंट्स प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर, डायनेमो, चोक के कोर्स में, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है इन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, विद्युतीय उपकरणों जैसा ट्रांसफार्मर, जनरेटर, चोक के कोर्स में काफ़ी अधिक हीट उत्पन्न होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के रूप में प्रोड्यूस होता है ड्यू टू जूल हीटिंग इफेक्ट। और इसके चलते बहुत अधिक मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। तो उसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए, मतलब ED करंट के मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए, कंप्लीटली तो उसको रोका नहीं जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर है जैसे, तो ट्रांसफार्मर का कोर को परतदार कर दिया जाता है, लेमिनेटेड कर दिया जाता है। लेमिनेटेड का मतलब है कि एक सिंगल आयरन पीस के बदले में उसको कई थिन पीसेस में डिवाइड करके और उसके बाद वार्निश द्वारा उसे इंसुलेटेड करके, वार्निश लगाकर इंसुलेटेड किया जाता है और एक दूसरे पर सभी जो इंसुलेटेड स्ट्रिप्स है उसको एक दूसरे पर अरेंज करके उसको एक लेमिनेटेड आयरन कोर बनाया जाता है। अभी इससे फ़ायदा यह होगा कि ईच जो प्रत्येक इंसुलेशन है आयरन पीस का, उसका रेजिस्टेंस एक थिक आयरन कोर से काफ़ी अधिक होता है। अब लेमिनेटेड आयरन कोर के ईच इंसुलेशन से होकर के प्रत्येक इंसुलेशन से होकर के जब ED करंट फ्लो करेगा तो उसका रेजिस्टेंस उसका पाथ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ED करंट का, और पाथ ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसके कारण लेमिनेटेड कोर का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एक सिंगल आयरन कोर की अपेक्षा के कंपेरिजन में, और इसलिए लेमिनेटेड आयरन कोर का यूज करने से
ईडी करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। इस प्रकार ईडी करंट के कारण जो लॉसेस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट के फॉर्म में प्रोडक्शन कन्वर्सन हो जाता है, जिससे काफ़ी अधिक मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। तो उसको रोकने के लिए लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज किया जा सकता है। लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज करने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है लैमिनेटेड कोर का, और वह उससे होकर के जब ईडी करंट फ्लो करता है तो उसका मैग्नीट्यूड घट जाता है। तो इस प्रकार जो लॉसेस हो सकता है ईडी करंट के कारण उसको मिनिमाइज, देयरफॉर द लॉसेस ड्यू टू ईडी करंट्स कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग ए लैमिनेटेड आयरन कोर in a transformer or in other electrical appliances like generator, chokes, etc. Now write down energy loss, that is electrical energy loss in form of heat. Electrical energy losses in form of heat energy in the course of the electrical appliances like generators, transformer, generators, choke, etc. can be reduced, minimized by using a laminated iron core in place of a single iron core. आयरन कोर एक मेटल पीस के बदले में इन प्लेस ऑफ एन आयरन पीस एज ए कोर, place of an iron piece as a core. आयरन पीस को कोर के रूप में यूज करने से बिना लेमिनेटेड किए हुए तो उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा, तो उससे होकर उसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में ईडी करंट प्रोड्यूस होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट के रूप में काफ़ी अधिक वेस्टेज होगा, जो कि अनडिजायरेबल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है या अनवांटेड डैम्पिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, जिससे कि मोशन of the conductor inside the magnetic field, a strong magnetic field can be affected, can be retarded, can be damped in place of an. So laminated iron core can be used by using a laminated iron core in place of an iron piece as a core, because the laminated core, iron core, having more resistance than that of a single iron piece. Laminated iron core having
much more resistance. Than that of a single, and that of an iron piece. एक आयरन पीस की तुलना में कंपेरिजन में अगर उसी को लेमिनेटेड कर दिया जाए, अनेक लेयर्स में उसको डिवाइड करके, उसके बाद वार्निश करके उसको इंसुलेटेड कर दिया जाए, और उसके बाद एक दूसरे पर अरेंज करके उसको लेमिनेटेड कोर अगर कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और बढ़ने से जब उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होगा तो उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम हो जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज काफ़ी रुक जाएगा. Thus the magnitude of ED currents can be reduced. Magnitude of ED current can be minimized, can be reduced. घट जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईडी करंट, चूँकि ईडी करंट का मैग्नीट्यूड घटेगा चूँकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और ईडी करंट घटेगा तो हीट लॉस भी घटेगा. कैन बी रिड्यूस्ड एंड द एनर्जी लॉस, electrical energy loss in form of heat, and the electrical energy loss in form of heat can be minimized. Now in last, advantages or applications or usage of ED currents. Some of the important usage of ED currents we are going to discuss. First is in a speedometer. A speedometer is a device used to measure the instantaneous speed of a vehicle. A speedometer एक ऐसी युक्ति है जिसके हेल्प से हम किसी मोटर गाड़ी के ताक्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं. इट कंसिस्ट्स ऑफ ए स्पीडोमीटर consists of a small magnet attached to the axle of the wheel of a motor vehicle. Now write down a speedometer consists of a small magnet attached to the axle of the wheel, axle of the wheels of a vehicle, सराउंडेड बाई एन एल्युमिनियम ड्रम. एक एल्युमिनियम ड्रम से सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाई एन एल्युमिनियम ड्रम. ड्यू टू रोटेशन of the magnet, rotation of the magnet,
induced current are, that is ED currents are ED currents produced in the drum, inside the drum, aluminum drum, a pointer attached to the drum deflected in the direction of motion of the drum, attached to the drum, deflected in the direction of rotation of the drum. A pointer attached to the drum deflects in the direction of rotation, in the direction of rotation of the drum, which measures the instantaneous speed of the vehicle, which measures the instantaneous speed of the vehicle, instantaneous speed of the vehicle. नंबर 2, तो इस प्रकार स्पीडोमीटर के हेल्प से किसी व्हीकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड तात्कालिक चाल को मापा जा सकता है। मोटर व्हीकल के पहिए के एक्सल में इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक छोटा सा मैग्नेट कनेक्टेड होता है, जिसके जो एल्युमिनियम ड्रम के अंदर होता है, और मैग्नेट के रोटेशन से जब व्हील रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ एक्सल से लगा मैग्नेट है उसमें रोटेशन होगा, तो उसके कारण ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है एल्युमिनियम ड्रम के अंदर। और ईडी करंट्स के कारण जो पॉइंटर अटैच्ड होगा एल्युमिनियम ड्रम से, तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, और वह डिफ्लेक्शन एल्युमिनियम ड्रम के रोटेशन के डायरेक्शन में होता है। तो उस पॉइंटर जो एल्युमिनियम ड्रम से अटैच्ड होता है उसके हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर कर सकते हैं मोटर व्हीकल के। नाउ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स ऑफ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, in the electromagnetic brakes of the electric trains, this is another important example of application of use of ED currents in the electromagnetic brakes of the electric trains. An electromagnet is attached to the axle of the wheel above the rails. Due to the rotation of the wheels, there is relative motion between the electromagnet and the rails, resulted to the production of ED currents in the rails, which these ED currents produced in the rail retards the motion of the train, and thus brakes are applied. In the axle, a small electromagnet, an electromagnet is
An electromagnet is attached to the axle of the wheels, axle of the wheels of the wheel, axle of the wheels of a train just above the rails, इलेक्ट्रोमैग्नेट रेल पटरियों के ऊपर एक्सल से लगा होता है, कनेक्टेड होता है, above the rails, due to relative motion between the electromagnet and the rails. इलेक्ट्रोमैग्नेट और रेल्स के बीच में रिलेटिव मोशन होने से, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हील के एक्सल से कनेक्टेड होता है, तो जब व्हील रोटेट करेगा तो उसके कारण उसके एक्सल में लगा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी रोटेट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और रेल्स के बीच में, रेल पटरियों के बीच में रिलेटिव मोशन होने से ईडी करंट्स रेल पटरियों में, रेल्स में प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि मोशन का, व्हील के मोशन का अपोज करेगा और ब्रेक इस प्रकार से अप्लाई हो जाएगा। तो ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द रेल्स, ईडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड। In the rails which opposes the motion। चूँकि ईडी करंट का रिटार्डिंग, डैम्पिंग इफेक्ट होता है, मोशन को रिटार्ड करता है, हमने देखा है एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन में। which opposes the motion of the wheels and thus brakes are applied. So this is the use of eddy currents in the electromagnetic brakes of the electric trains. Some other advantages or usage of eddy currents are: number 3, induction furnace. In an induction furnace, a large metal piece is melted due to production of eddy current. Write down in an induction furnace, a large metal block is melted due to the production of large eddy current, a strong eddy current, due to the production of a strong eddy currents. In the furnace. तो इंडक्शन फर्नेस में, जिसको हिंदी में प्रेरण भट्टी कहा जाता है, प्रेरण भट्टी, तो उसमें लार्ज मेटल पीस को, जैसे आयरन पीस है, उसका ओर्स है, उसको गलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट
हीट प्रोड्यूस होगा, माने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ईडी करंट प्रोड्यूस होता है इंडक्शन फर्नेस में, जिससे कि लार्ज मेटल पीस ब्लॉक को गला करके, या ओर्स है जैसे आयरन ओर्स है तो उससे ओर्स से उसके मेटल को, आयरन को ऑब्टेन किया जाता है। नाउ सम अदर यूजेज आर इन इंडक्शन कुकिंग। इन इंडक्शन कुकिंग खाना बनाने में इसमें कॉपर का पॉट होता है, उसमें लार्ज ईडी करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ईडी करंट्स। देखिए द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, large amount of heat is produced in a copper का बना हुआ होता है, कॉपर कंटेनर और पॉट, कॉपर कंटेनर या कॉपर पॉट कह सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। कॉपर पॉट ड्यू टू, क्यों हीट प्रोड्यूस होगा? ईडी करंट्स के कारण, ड्यू टू ईडी करंट्स यूज्ड टू मेक फूड, prepare food, which is called induction cooking, used to cook food, which is called induction cooking, तो इंडक्शन कुकिंग खाना बनाने के लिए भी होता है। इंडक्शन कुकिंग में इंडक्शन चूल्हा होता है जो खाना बनाने में यूज होता है, उसमें कॉपर पॉट होता है और कॉपर पॉट में लार्ज अमाउंट ऑफ ईडी करंट्स उसमें प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा हीट होगा। A large amount of heat is produced in a copper pot due to eddy currents used to cook food, used to make food, which is called induction cooking. Now I am going to discuss its last application, induction motor. Induction motors are used in fans, ceiling fans. Induction motors are used in ceiling fans. सीलिंग फैन में इंडक्शन मोटर का यूज होता है, जिसमें कि रोटर होता है और उसको वह रोटर ईडी करंट के कारण रोटेट करता है। इन एन इंडक्शन मोटर its rotor rotates with the help of eddy currents. Eddy currents Induction motors are used in ceiling fans. Induction motors
आर यू इन सीलिंग फैंस, सीलिंग फैंस। तो 5 एप्लीकेशन, 5 एडवांटेजेज, 5 एडवांटेजेज हम ईडी करंट्स का जो इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस था उसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी इसके और भी एडवांटेजेज है, लेकिन मेन एडवांटेजेज हम लोगों ने 5 इसके मेन एडवांटेजेस का स्टडी किया। और इसी के साथ ये पार्ट 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर, जो कि चैप्टर 6 है 12th क्लास का, समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।